Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series of ancient history through MCQs. Now इस MCQ की सीरीज़ में हमारा आज का चैप्टर होने वाला है बुद्धिज़्म एंड इन दिस सीरीज़ वी आर कवरिंग ओल्ड NCERT एज वेल एज न्यू NCERTs थ्रू MCQs. ओके, सो आज हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर बुद्धिज़्म. ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं आप सबसे पहले आई विल रीड द क्वेश्चन एंड देन आपको अगर आंसर देना होगा तो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ. लेट अस स्टार्ट. बिफोर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अंडर गौतम बुद्ध एंड महावीर, many religious thoughts were prevalent in India. Which among the following was were the religious ideas followed by the people before them? Now this question has been taken from chapter 4 of class 12th NCERT, new NCERT. Now what were the ideas that were prevalent? Now just to give you a background ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, the first religion that flourished was Vedic religion and it was based on the 4 Vedas, that is the Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved and Third Ved. Okay, now most of the religion was concentrated on the basis of Dharma Shastras. Now these Dharma Shastras advocated the duties that were to be performed by the 4 Varnas of the societies. So now the question arises, what were the 4 Varnas? Brahmins on the top, then came the Kshatriyas, then the traders were the Vaishyas and then Shudras. Now the work was Shudras was to the work that was assigned to Shudras was to serve the upper 3 Varnas. Vaishyas performed the trading activity, Kshatriyas were for the protection and Brahman used to recite magical hymns and they performed the sacrifices. Okay, now this Varna system created a hierarchy in which discrimination after one time started against the Vaishyas and the Shudras. Now Buddhism and Jainism, it gave the people an alternative to the mainstream Brahmanical culture. Now this alternative was provided by Buddhism and Jainism on the pretext that caste was not an issue in both of the religions. Caste was not at all an issue, which was a major point of differentiation between the Vedic culture, between the Brahmanism and between the Buddhism and Jainism. Okay, Jainism यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द चैप्टर ऑफ बुद्धिज्म ओनली. ठीक है, ऑल्दो बुद्धिज्म और जैनिज्म सेम प्रेटेक्स्ट पे ही फॉर्म हुए थे, इट वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल रिलीजन. दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने जैनिज्म लिखा है. सो यू डोंट वरी, इस चैप्टर में हम बुद्धिज्म को डील करेंगे एंड देन इन नेक्स्ट चैप्टर आई विल टॉक अबाउट द जैनिज्म. ठीक है, नाउ व्हाट वेयर द आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज विच वेयर फॉलोड बाय द पीपल बिफोर देम. नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें. पीपल कलेक्टिवली परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस. अभी मैंने बताया वैदिक सैक्रिफाइसेस वेयर परफॉर्म्ड इन द ब्राह्मणिकल लिटरेचर, तो ऑलरेडी sacrifices परफॉर्म होते थे. दे वर्शिप वैदिक गॉड सच एज अग्नि, इंद्र एंड सोमा. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. पीपल वे आर डिस्कसिंग एंड राइटिंग अबाउट द क्वेश्चन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ. Meaning of life and the philosophy of life is dealt in the Upanishads. So all of this was done by the people at that time. So ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म के पहले, बिफोर देयर एमर्जेंस, व्हाट ऑल पीपल यूज टू डू. सो परफॉर्म सेक्रीफाइसेस से आपको पता चल गया होगा ऋग वैदिक रिलीजन के बारे में. इस ऑप्शन से आपको पता चला गया होगा अबाउट द गॉड्स दैट द पीपल यूज टू वर्शिप एंड what all people did at that time. So the correct answer is all of the above. ठीक है, next question देखते हैं. Now let us read this question. Consider the following statement regarding the origin of Buddhism and Jainism in the 6th century BC. Now the first one is, we have to mention the incorrect statement here. The first one is, introduction of new agricultural economy was main cause of origin of Buddhism and Jainism in the 6th century BC. Yes, absolutely correct. After the Iron Age, what happened was iron was invented. Now आयरन जैसे इन्वेंट हुई, आयरन वॉज यूज फॉर द पर्पस ऑफ द वारफेयर. वॉर्स को वेज करने के लिए भी यूज़ होती थी एंड आयरन वॉज ऑल्सो यूज फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए भी आयरन का यूज़ होता था. तो एज द पीपल शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट आवर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ ड्रेन्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम. अब जहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम था, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे एंड वुडन इम्प्लीमेंट से इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कट दीज फॉरेस्ट. आयरन जब इम्प्लीमेंट आए आफ्टर द वैदिक एज, आफ्टर द आयरन एज, द यूज़ ऑफ आयरन बिकेम प्रोमिनेंट
and after this use of iron was made, the forests were cleared and agriculture started to flourish in that area. And this was the time, आपने पता होगा कि बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, फ्रॉम द ट्रेडर्स विच डिड ट्रेड. तो ट्रेड कब फ्लरिश करेगा? ट्रेड तब फ्लरिश करेगा जब एग्रीकल्चर राइज होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर इंक्रीज़ किया तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की. प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया इसका मतलब क्या? सम ऑफ द प्रोडक्ट, मान लो 100 आपकी प्रोडक्शन है, आप 20 अपने कंजम्पशन के लिए रखोगे, 80 आप सरप्लस है आपके पास. ये सरप्लस को क्या करोगे? आप ट्रेड ही तो करोगे. तो यही ये पहला पॉइंट कह रहा है कि न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी रेज हुई, जिसके बाद ट्रेडर्स फ्लरिश किए एंड ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे बुद्धिज़्म को. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. दीज रिलीजन्स इमर्ज्ड इन एरिया सराउंडिंग द इंडस वैली इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. अभी जस्ट राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट दिस फ्लरिश्ड इन द एरिया ऑफ गंगा वैली. एंड दिस गंगा वैली, अगर आप मैप जानते हो इंडिया का, तो यू विल नो दैट इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. सो नॉर्थ वेस्टर्न तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं. द थर्ड वन ऑफ द इंडियन सोसाइटीज, वैश्य जनरसली सपोर्टेड द न्यू एमर्जिंग रिलीजन्स इन इंडिया. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया अभी? वैश्याज वेयर मोस्टली द ट्रेडर्स, एंड ये ट्रेडर्स तो सपोर्ट करते थे ना बुद्धिज़्म को, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. न्यू एमर्जिंग रिलीजन का क्या मतलब है यहाँ पे? बुद्धिज़्म ही तो है, जैनिज़्म ही तो है, तो ट्रेडर्स का तो सपोर्ट था इनको. सो थर्ड एंड हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर. मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ओनली 2 है यहाँ पे. ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड. नाउ दीज आर द थिंकर्स एंड दिस इज़ द कंट्री. गौतम बुद्ध, यू नो गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन इंडिया. ठीक है, लुम्बिनी इज़ द बर्थ प्लेस वेयर गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न. ठीक है. कॉन्ग जी की बात करें तो कॉन्ग जी एज द नेम सजेस्ट कि ही वॉज फ्रॉम चाइना. ठीक है. ज़राथुस्त्रा, who was he hailed from Iran. He was a great spiritual thinker of the Zoroastrianism. ठीक है. एंड सॉक्रेटिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ही वॉज द फेमस ग्रीक फिलोसफर. तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है? बी इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट. ए हमारा फोर्थ पे था, सेकंड पे था. कॉन्ग जी फ्रॉम चाइना, 2-1 यहाँ पे ओनली मैंशनड इन द बी स्टेटमेंट. सो अब हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हमें क्या बताना है? वी हैव टू मेंशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन शाक्य क्लैन ऑफ कपिलावस्तु. एब्सोल्युटली करेक्ट है. ही वॉज बॉर्न इन 563 BC in a Shaka Kshatriya family in Kapilavastu. So the first statement is correct. His childhood name was Siddhartha. Absolutely correct. ठीक है, childhood का name सिद्धार्था था. And the name of his father was सुद्धोधना. ठीक है, सुद्धोधना. ठीक है ना. He was born at कुशीनगर. मैंने आपको क्या बताया अभी? He was born in लुम्बिनी which is in present day नेपाल. कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था. ठीक है. थर्ड हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ओनली 3 इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वॉज. नाउ वर्शिपिंग इन इंडिया द फर्स्ट स्टैचू विच वॉज वर्शिप्ड वॉज दैट ऑफ बुद्धा. एंड आपको ये जानना चाहिए एंड आपको ये पता होना चाहिए, देयर वॉज अ महायान सेक्ट. There was a Mahayana sect of the Buddhism which used to preach Buddha in the form of statue. ठीक है. This Mahayana sect emerged in the 1st century AD and emphasized on preaching Buddha through idols. ठीक है. So C is the correct answer. and इसके अलावा जो मैंने additional information दी है आपको, that is also very very much important. Next is, in Buddhism the word Sangha denoted. So it denoted the order of Buddhist monks. ठीक है. This Sangha was very disciplined and it was a
डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वाई दिस संघा वॉज मेड? बिकॉज बुद्धा अपराइटली रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ a scripture that was Vedas. Buddha rejected the authority of Vedas and he also rejected the caste system. That is why बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था ड्यू टू द वर्ण सिस्टम दैट वाज देयर, ठीक है। सो संघा वॉज अ ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें यहाँ पे। सो गौतम बुद्धा रिगार्डेड द सोशल ऑर्डर एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन rather than of the divine origins. Next is for attaining liberation the participant and guidance of Buddha Sangh is essential. नाउ यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बुद्धा ने बोला था अ संघ वॉज नीडेड बट इट वॉज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म देयर वेयर डिफरेंट पार्ट ऑफ लिबरेशन, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट वॉज बिलीव्ड टू ट्रांसफॉर्म द सोशल रिलेशंस, ठीक है। बुद्धा emphasized on the individual agency and the power of an individual which will be corroborated with the righteous action, ठीक है। and this individualistic action with righteous actions would ensure the escape from the cycle of birth and death and the cycle of rebirth, ठीक है। this was the main idea of Buddha, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो बी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये आप प्लीज़ अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये इसका नोट्स आप बना लेना, ठीक है ना। बहुत बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है दिस आई हैव एक्सट्रैक्टेड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर वे आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? नाउ इजी क्वेश्चन है, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर वे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज, ठीक है। Why Pali language was used? Because Pali language was also known as the language of common people. That is why Pali was used. ठीक है, A is the correct answer. Next है, who among the following were not allowed to be the member of Sangha? Who were not allowed? तो neither debtors were allowed, neither the slaves were allowed, ठीक है। So both B and C, both of them, slaves were also not allowed, debtors were also not allowed. Just for your knowledge, ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखा, संघ की मेंबरशिप में वुमेंस वेयर अलाउड, वुमेंस को अलाउ किया था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द वैदिक फिलॉसफी एंड बुद्धिस्ट टीचिंग? अभी मैंने आपको ये तो बता दिया व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैदिक फिलॉसफी एंड द बुद्धिस्ट टीचिंग, वेदास क्या बोलते थे एंड बुद्धा ने क्या बोला था, बट अभी एक सिमिलैरिटी भी थी, उस पर यह क्वेश्चन है। नाउ बोथ एग्रीड ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, अभी मैंने बताया बुद्धा डिड नॉट बिलीव्ड इन द अथॉरिटीज ऑफ वेदास, ये तो गलत है। बोथ एक्सेप्टेड द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, अभी मैंने जस्ट राइट नाउ बताया कास्ट सिस्टम वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू बुद्धा, ठीक है। बोथ बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमारा बिल्कुल सही है, कर्मा के डॉक्ट्राइन पे दोनों का बिलीव था। वैदिक फिलॉसफी प्लेस द वैल्यू ऑन कर्मा, अकॉर्डिंग टू इट पीपल वेयर बॉर्न इनटू डिफरेंट वर्नास एंड रीबर्थ अकॉर्डिंगली, ठीक है। वेयर एज बुद्धा की अगर हम बात करें, सो बुद्धा ऑल्सो बिलीव्ड इन राइटियस एक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड इसके साथ में कर्मा, ठीक है। नाउ द 8 कोड्स विच वेयर गिवन बाय बुद्धास वेयर सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। ऑल्सो एक बात बताऊँ आपको, एक स्टोरी है रिलेटेड जिसमें कि अजात शत्रु एंड बुद्धा के बीच में एक कन्वर्सेशन हुई थी रिगार्डिंग कर्मा, ठीक है। हाउ कैन कर्मा हेल्प यू टू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। सो दे बोथ बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ कार्ले एंड बेत्सा हैव बीन डिस्कवर्ड?
नाउ कार्ले इज़ इन महाराष्ट्र, सो बेतसा जो है वो भी महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। नाउ दीज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट फॉर मॉन्क्स टू लिव, एंड जहाँ पे मॉन्क्स wherever the monks lived it was known as chaityas, ठीक है। and now these Karle and Betsa, these were built by the Satavahana rulers, ठीक है। so these all are in Maharashtra. Let's now move to the next question. Which one of the following statement regarding the doctrine of middle path is incorrect? It was preached by Gautam Buddha, 8-folded path was there, ठीक है। अष्टध्यायी, सॉरी नॉट अष्टध्यायी, अष्टांगिक मार्ग was propounded by Buddha, so it is the statement is correct. According to this doctrine, a person should avoid excess of both luxury and austerity, absolutely correct. This concept was borrowed from the Jaina philosophy. No, it was not borrowed from the Jaina philosophy. This doctrine of middle path was exclusive to Buddhism, ठीक है। जैना फिलॉसफी की अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ ना तो सयादवाद, ठीक है, दिस वाज अ कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू जैनिज्म। ऑल्सो ये जो मिडिल पाथ था, इट द बुद्धा बिलीव दैट दिस पाथ कैन बी फॉलोड बाई बोथ, मॉन्क भी फॉलो कर सकते थे एंड इसको ले पर्सनस, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, दोनों के दोनों यहाँ पे नॉर्मल पीपल एज वेल एज मॉन्क, दोनों के दोनों इसको प्रीच कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज़्म? फ्रीडम ऑफ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अभी जैसे मैं आपको बुद्धा के कंसेप्ट बता रहा हूँ, सो मैंने आपको जो 8 फोल्डेड पाथ बताया अभी, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ बताया अभी, इसके पहले मैंने बताया कि सिमिलैरिटी क्या था वैदिक रिलीजन और बुद्धिज़्म में, द लॉ ऑफ कर्मा, एंड ये सारा का सारा किससे रिलेटेड था कि अगर आपके राइटियस एक्शन होगा, आपका कर्मा गुड होगा, तो यू विल गेट फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, रीबर्थ के साइकिल से आप फ्री हो जाओगे। सो निर्वाणा का कंसेप्ट क्या था? निर्वाण क्या है? आप बर्थ एंड डेथ के साइकिल से फ्री हो गए, वो आपके लिए निर्वाणा है। दिस वॉज प्रोपाउंडेड बाय बुद्धिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, in Buddhist literature, Sutta and Vinay Pitaka are considered most authentic texts for the understanding Buddhism. What was the main theme of both these texts? Now, 3 पिताकास थे। सबसे पहला तो सुत्त पिताका है, देन इट इज़ विनय पिताका, एंड द लास्ट वन इज़ अभिधम्म पिताका, ठीक है। नाउ सुत्त पिताका एंड विनय पिताका का क्या क्या इंक्लूडेड था वो इस क्वेश्चन में है, एंड अभिधम्म पिताका मैं एक्सप्लेनेशन के बाद इसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। नाउ सुत्त पिताका वॉज इट कंसिस्टेड ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वेयर एज विनय पिताका डेल्ट विद द रूल्स फॉर मेंटेनिंग द मोनेस्टिक ऑर्डर, ठीक है, विच वॉज नोन एज संगा। संगा के रूल्स विनय पिताका में मेंशन थे एंड सुत्त पिताका में बुद्धा की टीचिंग मेंशन्स थी। थर्ड पिताका जिसके बारे में भी मैंने बात की, विच वॉज नोन एज अभिधम्म पिताका, इस अभिधम्म पिताका में क्या था? सो इट कंसिस्टेड ऑफ द फिलोसफिकल मैटर, ठीक है। नाउ ये तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैदिक लिटरेचर में देयर वेयर उपनिषद्स, इन उपनिषद्स में क्या होता था? इनमें भी फिलोसफिकल मैटर होता था, ठीक है, फिलॉसफी पे ये डील करते थे। सो दो बातें यहाँ पे, 3 चीज़ें, 3 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो गए। सुत्त पिताका इट consisted of Buddha's teaching. Vinay Pitaka dealt with the rule of monastic order, that were the rules of the Sanghas. Abhidhamma Pitaka it dealt with the philosophical aspect of the Buddhism, and Upanishad जो था it dealt with the philosophy in the Vedic period, ठीक है। सो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, विच ऑफ द अबव इज और आर द फीचर ऑफ महायान बुद्धिज़्म। महायान बुद्धिज़्म क्या था? अब यहाँ पे देखो, ये IAS प्री मतलब UPSC CSC 2019 में क्वेश्चन पूछा था। डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा, इसका मतलब क्या? आइडल वर्शिप। अभी मैंने आपको क्या बताया? आइडल वर्शिप था, बिल्कुल था। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स थे, बिल्कुल था। 1 और 3 तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, 1 और 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है, तो सेकंड तो ऑटोमेटिकली सही होगा ना, तो इसका आंसर हमारा D होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक नया टर्म है, दैट इज़ बोधिसत्वा। बोधिसत्वा मतलब क्या?
इट वॉज द हाइएस्ट पॉइंट दैट एन इंडिविजुअल शुड एम ऑफ। अब इस बोधिसत्वा के पाठ में भी दो थिंकिंग्स थी, एंड वो दोनों थिंकिंग्स के ऊपर में दो अलग अलग स्कूल थे बुद्धिज़्म के। पहला तो था महायान, दूसरा था हिनायान। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस था ऑन द नेम ऑफ बोधिसत्वास। नाउ महायान में क्या था कि बोधिसत्वा आपका तब माना जाएगा जब आप इंडिविजुअली तो उसको अटेन करोगे, अपने साथ साथ कम्युनिटी या आसपास के लोग भी आपके बोधिसत्व अटेन करेंगे, देन प्रॉपर मायने में माना जाएगा कि आपने बोधिसत्व अटेन किया है। वेयर एज हिनायान बुद्धिज़्म में क्या था कि ओनली अगर इंडिविजुअल ने बोधिसत्व अटेन किया तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को ज़रूरत है, वहाँ पे कम्युनिटी का ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि कम्युनिटी नेसेसरी नहीं है, कि कम्युनिटी नेसेसरी, अगर कम्युनिटी आपकी बोधिसत्व अचीव करेगी तभी आप करोगे। ठीक है, बेसिक डिफरेंस था यही। ठीक है, 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपका महायान एंड हिनायान वाला कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। अगर आपको नहीं पता था तो वो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। अभी मैंने आपको क्या बताया, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है। मैंने अभी क्या बताया, महायान में भी था ये तो कंसेप्ट, मैं तो डिफरेंस भी बता दिया महायान एंड हीनायान के बीच। तो सेंट्रल कैसे हो गया ये हीनायान सेक्ट को, ये कंसेप्ट तो महायान में भी था। क्वेश्चन में देखो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फर्स्ट, तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया हमने। ऑप्शन बचा या तो 2 सही होगा या 2 and 3 सही होगा, तो देख लेते हैं। Bodhisattva is compassionate way one on his way to enlightenment. Absolutely correct. Bodhisattva delays achieving his salvation to help all sentient beings on their path to it. अब ये जो कंसेप्ट है ये महायान बुद्धिज़्म है। महायान सबसे प्रोमिनेंट बुद्धिज़्म था, दैट इज़ वाई यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म का नाम नहीं लिया। अगर यहाँ पे हिनायान होता ना कि बोधिसत्वा डिले अचीविंग हिज सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट, this statement was given by this statement और this was practiced by Hinayan Buddhism। अगर ये क्वेश्चन होता तो आपका ये स्टेटमेंट गलत होता। ठीक है, इन जनरल बोधिसत्वा का यही मीनिंग होता है, दैट इज़ वाई 3 हमारा करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा 2 and 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच डिस्क्राइब्स दैट द एम्परर अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्धास रिलिक्स टू every important town and ordered the construction of stupas over them was, which was this book? Now एक यह बात याद रखना, दीपवंसा एंड महावंसा ये दोनों के दोनों बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड बुक थी जो कि श्रीलंका में कंपोज हुई थी। ठीक है, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा था, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये दोनों तो नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों तो प्रोमिनेंट बुक्स हैं। अब अशोका ने कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा था कि बुद्धिस्ट रिलिक्स को हर टाउन तक फैलाना है, ये लिखा था अशोक वंदना में। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे अशोक वंदना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अंडा, हर्मिका, यष्टि, छत्री आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स? दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी स्तूपास। ठीक है, नो अंडा, अंडा से आपको समझ में आ जाएगा अंडा का क्या शेप होता है, यही तो शेप होता है ना। स्तूपा भी तो ऐसे ही बनता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो ना कि ये तो एक टाइप ऑफ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिज़ाइन है ना, ये तो सिमेट्री में नहीं है। अंडा मतलब क्या, आप शेप इमेजिन कर सकते हो। अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो आप स्तूपा स्टिक करके आओगे और यही इसका आंसर है। छतरी से भी पता चल रहा है, छतरी मतलब क्या, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना अम्ब्रेला, तो यही तो स्तूपा का भी डिज़ाइन होता है, ऐसा गोल सेमीस्फेरिकल। ठीक है, सो स्तूपा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, which among the following statement is correct regarding Buddhism? The Buddha's follower came from upper caste only। मैंने इतना भी एक्सप्लेनेशन किया है आपको, हर जगह मैंने आपको ये बताया है कि बुद्धा का टारगेट लोअर कास्ट था, अपर कास्ट तो खुश थे हिंदुज़म में, तो ये तो गलत है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अभिधम पिताका कंटेन्स द टीचिंग ऑफ बुद्धा। अभिधम पिताका इज रिलेटेड टू द फिलोसफिकल एस्पेक्ट। बुद्धास की टीचिंग तो विनय पिताका में है, ये भी गलत हो गया। बुद्धिज़्म इन स्टार्टिंग वॉज इन्वॉल्व इन मेटाफिजिकल रियलिटीज़ एंड इग्नोर द वर्ल्डली प्रॉब्लम। 8 फोल्डेड पाथ दिया था बुद्धा ने,
इसमें क्या बताया था, इंडिविजुअल भी अटेन कर सकते हैं, मॉन्क्स भी अटेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धा डेल्ट विद दी मटेरियल प्रॉब्लम्स दैट वेयर इन दी वर्ल्ड, डे टू डे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे टारगेट किया था बुद्धा ने। उसके बाद में अभिधम पिताका में मेटाफिजिकल रियलिटीज़ को डील किया था। सी भी नहीं होगा, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है तो ए बी सी हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, डी ही तो होगा। डी डी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। बुद्धा इन इज लाइफ टाइम ट्राइड टू फाइट एविल बाई गुडनेस एंड हेट्रेड एंड लव, जेनरिक स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको ये पता चले और आपको जो प्रीवियसली जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपकी रिवाइज हो जाएँ, ठीक है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो। Now with reference to the women in the Sangha, Buddhist Sangha, which of the following statement is or are correct? On the mediation of Ananda, Buddha allowed women into the Sangha. Now Buddha पहले he was of the view that women should not join Sangha, but one of his friend Ananda उन्होंने बात की बुद्धा से and then ultimately Buddha allowed women into Sangha. तो first statement सही है। Now foster mother of Buddha, Mahaprajapati Gautami was the first woman to be ordained as a भिक्षुनी। तो बिल्कुल सही है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बहुत फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। अब अपने नोट्स में ऐड कर लेना इसको। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बोथ 1 and 2 हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, दैट इज़ वाई इसको आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement regarding the teaching of Gautam Buddha. He taught his followers to strictly follow the code of conduct prescribed by him. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। अब बुद्धा मैंने आपको बताया ही डेल्ट विद दी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। अब वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में तो पता नहीं है कि आज क्या होगा कल क्या होगा। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन देख लो क्या बोला है, स्ट्रिक्टली फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। जो इंसान मटेरियलिस्टिक और वर्ल्डली प्रॉब्लम्स के साथ डील करेगा, क्या वो कोई स्ट्रिक्ट कोड फॉलो कर सकता है, या स्ट्रिक्ट कोड को वो ऐसा कर सकते प्रोपागेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बुद्धा का ये मानना था ओन पाथ फॉर लिबरेशन होना चाहिए, आपको जैसे सही लग रहा है, बट लिबरेशन इज़ ज़रूरी है। मैंने आपको गाइड कर दिया है कि ये कंडक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कभी नहीं बोला। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, फर्स्ट वन तो हमारा इनकरेक्ट है। टू अटेन निर्वाणा ही सजेस्टेड दी 8-folded path, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 हमारा करेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। ही ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंट ऑफ मिडिल पाथ एंड सेड दैट वन शुड अवॉइड द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ स्ट्रिक्ट एसिस्टिज्म, मतलब कि मोनिस्टिक जो रूल्स होते हैं या जिसको साधु बोलते हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हो, एंड टू मच इंडल्जेंस, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज़ करेक्ट। इनकरेक्ट। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द ऑर्डर। सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में हुआ था धर्मचक्र प्रवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब कि फर्स्ट सेरेमन वाज गिवन एट सारनाथ। लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में आई टोल्ड यू बुद्धा का बर्थ हुआ था, तो यहाँ से तो ये करेक्ट है। कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर में मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सप्लेनेशन में, महा परिनिर्वाणा हुआ था, मतलब क्या, डेथ। बोध गया में क्या हुआ था, बोध गया में इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, कि आपको अगर रिवाइज नहीं है तो आप रिवाइज करो, नहीं तो इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको मैच करो आप, क्या होगा, ए का हमारा हो गया सारनाथ का फर्स्ट सेरेमन, तो ए का 3 हो गया, सो डी हमारा करेक्ट आंसर है। बी का 1, तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। टर्म्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड मीनिंग। व्हाट वाज द संघा, संघा मैंने आपको 10 बार बताया है, संघा वाज अ मोनिस्टिक ऑर्डर। व्हाट वाज स्तूपा, व्हाट वाज चैत्यास, चैत्यास क्या था, चैत्यास वो जगह थी वेयर बुद्धाज, वेयर दी स्तूपास क्या थे, जहाँ पे रेलिक प्लेस किए जाते थे। धम्मा वॉज व्हाट, इट वॉज द राइटियस पाथ। चैत्यास वॉज द प्लेस वेयर दी मॉन्क्स प्रेड। तो क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा, डी ही तो करेक्ट आंसर होगा।
ए का हमारा 3 है, बी का 1 है, ए का 3 बी का 1 कौन से ऑप्शन में है? 3 1 डी में तो है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। व्हाट डिड एम्प्टी सीट मेंट? एम्प्टी सीट का क्या मतलब था? इट वॉज रिलेटेड टू मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। वॉट वॉज व्हील? व्हील का मतलब होता था धर्मचक्र परिवर्तन, दैट वॉज द फर्स्ट सर्मन। स्तूपा का क्या मतलब था? स्तूपा का क्या मतलब था? स्तूपा का मतलब था महापरिनिवारना, दैट इज मीन द डेथ, मतलब रेलिक्स ऑफ बुद्धा। एंड बोधि ट्री वॉज रिलेटेड टू द इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। सो ए का हमारा 2 है, बी का हमारा 4 है, कौन से ऑप्शन में है? ए का 2, बी का 4 हमारा थर्ड ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिक्लेयर्ड द कैटल टू बी द गिवर ऑफ द फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस एंड प्लीडेड फॉर देयर प्रोटेक्शन। इस तरह के वेग क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए दिस वॉज मेंशन इन दी सुत्त निपाता। पिताका नहीं है, याद रखना, पिताकाज में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थी, सुत्त पिताका में। विनय पिताका में मोनिस्टिक ऑर्डर का जो कोड है वो था, एंड अभिधम में फिलोसफिकल एस्पेक्ट था। सुत्त निपाता है ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट्स क्रिएटेड अ न्यू हाइब्रिड संस्कृत बाय मिक्सिंग पाली विथ संस्कृत? पाली वॉज यूज्ड बाय बुद्धा एज द लैंग्वेज टू बी प्रीच्ड, एंड इट वॉज लेटर वॉज मर्ज्ड विथ संस्कृत टू अपील टू द अपर क्लासेस एज वेल। सो ये मिक्सचर जो था वो बुद्धिज़्म ने प्रपाउंड किया था। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। मैंने कोशिश की है कि अराउंड 30 मिनट्स में आपको बहुत अच्छे से बुद्धिज़्म रिवाइज़ करवा दूं, एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड शेयर कर देना वीडियोज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।